اور خبر تفصیل سے ادھمپور میں ITBP کے ایک کانسٹیبل نے فائرنگ کر کے اپنے 3 ساتھی اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔ بعد میں اس نے خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ مہلوک اتراکھنڈ کے چمولی کا رہنے والا تھا۔ زخمی ہو چکے جوانوں کو ملٹری اسپتال ادھمپور منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی حالت مستحکم بتائی گئی۔ انڈو تبتن بارڈر پولیس نے کہا کہ اس معاملے میں کورٹ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ITBP کی 8ویں بٹالین کے ایک جوان بھوپیندر سنگھ نے آج سے پہر فائرنگ کی تھی۔ ادھمپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں آنے والے دیوکا کمیونٹی ہال میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ بتایا گیا کہ اپنی سروس رائفل سے بھوپیندر سنگھ نے 15 سے 20 گولیاں چلائیں۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ITBP کی بٹالین کو ادھمپور میں یاترا کی ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے۔ پونچھ کے چکندباغ علاقے میں 3 روز قبل جس جگہ دہشت گردوں کے ذریعے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا تھا، اس علاقے سے فوج نے ایک پاکستانی خاتون کو دراندازی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اس خاتون کو پولیس کے سپرد کیا گیا۔ آج دیر شام تک اس خاتون سے پولیس کی پوچھ تاچھ جاری رہی۔ پاکستانی خاتون کی پہچان 49 سالہ روزیانہ ساکنہ فیروز آباد اسلام آباد پاکستان کے طور پر کی گئی ہے۔ پونچھ میں کل رات پاکستان کی جانب سے میندر سب ڈویژن کے بالنوئی علاقے میں ایک ڈرون داخل کرایا گیا۔ ڈرون LOC سے کافی اندر داخل ہو گیا، جس کے بعد فوج کی جانب سے ڈرون پر گولیاں چلائی گئیں، جس کے بعد ڈرون پاک مقبوضہ کشمیر کی جانب لوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد فوج اور SOG کی جانب سے علاقے میں تلاشی مہم چلائی گئی۔ ضلع میں پاکستان کی طرف سے اپنی ناپاک حرکتیں لگاتار جاری رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جہاں 4 دن پہلے پاکستان کی طرف سے چکندباغ علاقے میں جو ہے دراندازی کی کوشش کی گئی، جسے ہماری فوج نے ناکام بنا دیا، اسی کے بیچ کل رات کو پاکستان کی طرف سے پونچھ ضلع کے میندر سب ڈویژن میں بلنوئی سیکٹر میں ایک ڈرون جو ہے وہ ہندوستان علاقے میں گھسایا، جس کو دیکھ کر ہندوستانی فوج نے جو ہے اس پر گولی باری کی اور وہ ڈرون جو ہے واپس پاکستان کی طرف چلا گیا۔ لیکن پاکستان کی ناپاک حرکتیں یہیں کم نہیں ہو رہی۔ آپ کو بتا دیں کہ کل رات کو ہی چکندباغ علاقے سے ایک خاتون جو ہے پاکستان کے اسلام آباد کی رہنے والی ہے، وہ بھی دراندازی کرتے ہوئے بھارتی فوج نے پکڑی اور اس کو پولیس کے حوالے کیا، جس سے ابھی تک پوچھ تاچھ جاری ہے۔ تو ان سب باتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان کس طرح اپنی ناپاک حرکتوں کو لگاتار یہاں پر آزما رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ہندوستان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کو انجام دے رہا ہے۔ چاہے LOC پر اس نے جو ہے فائر بندی معاہدہ کیا ہے، لیکن اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ جو ہیں دونوں ملکوں کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی ان حرکتوں کے کارن ہی جو ہے یہاں پر LOC پر جو ہے آئے دن اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ منیش شرما، نیوز 18 LOC بلنوئی پونچھ۔ کشمیر میں حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ آج سری نگر بین الاقوامی ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی پہلی پرواز پہنچی۔ حجاج کرام کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ انہوں نے حج مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وطن عزیز کشمیر اور کشمیری پنڈتوں کی کشمیر واپسی اور کشمیر میں امن و امان کی بحالی کے لیے انہوں نے خصوصی دعائیں مانگی۔ انہوں نے انتظامات کو لے کر بھی اطمینان کا اظہار کیا، تاہم کچھ حجاج کرام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی رقم لی گئی تھی اس لحاظ سے انتظامات نہیں تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج سے 2 اگست تک حجاج کرام کی پرواز آتی رہیں گی۔ بہت شکر گزار ہوں جو عوام ناس کی شکایات ہو یا کوئی کسی فرد کی پرابلم ہو، ایک عام انسان کی پرابلم ہو، گھر گھر آپ پہنچاتے ہیں۔ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل عیال کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ عالمی انسانیت کے لیے، عالمی دنیا کے لیے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کے لیے ہم نے وہاں دعا مانگی، اس کے لیے وہ ہم نے دعا مانگی۔ خصوصاً اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے کشمیر کے لیے ہم نے دعا مانگی۔ ہم نے ان کے لیے بھی دعا مانگی جو ہمارے پنڈت بھائی ہیں، وہ باہر ہیں، ہم نے ان کے لیے وہ اپنے گھر دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ سفر رہا بالکل اچھا۔ کتنی خوشی ہے آپ کی؟ بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے، لیکن اس وقت غم ہے، واپس آ گئے، بہت غم ہے۔ انتظام ٹھیک تھے، لیکن جو یہ سپاہی جٹ ہے اس میں اچھا انتظام نہیں تھا، اس کی سیٹیں اچھا نہیں تھی۔ شکر شکر ربس کن لاکھ لاکھ شکر۔ سا زمان کتن کۭژاہ خوشی چھےٚ فاینلی آیِو تُہۍ یہِ کٲم انجام؟ سٹھا سٹھا نوت خاص کر رب اچھا قبولیت بیس سانٮ۪ن بچن تہِ کرُن۔
سانٮ۪ن حقن ہمساین ٲٹھناوان رشتہٕ دارن سانٮ۪ن سامٹن تمامن مسلمانن یس یتھ دربار تل یُن یہ قبوٗلیت کر بیٚیہِ کر قبوٗلیت کوٗتاہ انتظام کیُتھ اوس تھوٚمُت سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ اصل شُکر رۄبس کُن لاکھ لاکھ شُکر سورُے ووت برونٛٹھ کُن اوس ٹھیک مگر یُس زن یہ حج کمیٹی چھ تھوڑا بہت ڈیلے کران کیازِ مدینہ پاکس مز اوس تتہِ اوس نہٕ انتظام کہین ہر کُنہِ اوس فیسلٹی کہ کھینُک چنُک اسہِ اوس نہٕ ٹوٹل کہین مطلب اگر یمن پونسہٕ بیٚیہِ تہِ آسن نِنۍ مگر تتہِ گوٚژھ تِمن 10 دۄہن آسُن ہوٹلس پہ انتظام. حجاج کرام کی پہلی پرواز سری نگر ایئرپورٹ پہنچی. انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کشمیر اور ملک کے لیے انہوں نے خصوصی دعا کی اور خاص کر جو کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے لیے ان کے لیے بھی دعا کی. انہوں نے انتظامات کو لے کر بھی خوشی کا اظہار کیا. تاہم کچھ ایسے بھی حجاج تھے جن کا کہنا تھا کہ انتظامات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نیوز 18 نیٹ ورک کے لیے سری نگر ایئرپورٹ سے میں عابد حسین. کشمیر میں صدیوں سے آ رہی بھائی چارگی کی مثال آج بھی سری نگر ایئرپورٹ پر دیکھنے کو ملی. آج حجاج اکرام کے استقبال کے لیے ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں کا ایک گروپ ایئرپورٹ پہنچا. انہوں نے کشمیری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کشمیری زبان میں کلام سنائے. ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں سب بھائی بھائی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان طاقتوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہاں سب ٹھیک ہے اور ہم سب ایک ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح مسلمان امرناتھ یاتریوں کا استقبال کرتے ہیں اسی طرح وہ حجاج کا بھی استقبال کرتے ہیں. میسج یہی ہے کہ میں آج صبح ایئرپورٹ پہنچا. یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی جیسے آپ دیکھتے ہو اور ویلکم کر رہے ہیں. حاجیوں کا جو آج پہلا جتھا خانہ کعبہ سے یہاں پر پہنچ گیا ہے اور اس تہہ دل سے ہم استقبال کر رہے ہیں اس کو. اور یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان طاقتوں کو جو طاقتیں کشمیر کا خراب کر رہے ہیں, ان طاقتوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. ہندو مسلم سکھ عیسائی پہلے بھی بھائی تھے اور انشاءاللہ آج بھی بھائی ہے. اور یہ روایت جو صدیوں سے چل رہی ہے وہ آج بھی قائم ہے. ان طاقتوں کو میں کہنا, باقی حاجیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں جو آج آئے ہیں اور ان کی دعا ہم لیتے ہیں. اور جیسے پہلے جمال صاحب نے کہا امرناتھ یاترا جب ہوئی تھی تب کشمیری مسلمانوں نے سرداروں نے بہت ان کو تہہ دل سے جوش و خروش سے ان کا تہہ دل سے ویلکم کیا. اور آج ہم نے حاجی بھائیوں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی چاروں فرقے نے ویلکم کیا ان کو. اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں بھائی چارہ آج بھی ہے, انشاءاللہ بھائی چارہ آگے بھی ہے. ہم یہ میسج سارے بھارت کو دینا چاہتے ہیں کہ یہاں اپنی الگ آئیڈینٹیٹی ہے, اپنی پہچان ہے بھائی چارے کی. اور یہ ایک جس کو ہم پیرور کشمیری میں کہتے ہیں اس کا بول بالا ہمیشہ رہے گا اور تھا بھی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت بھائی جو ہے وہ یہاں آئے اور وہ ہمارے ساتھ رہے. اور یہ ہماری میسیج ہے تمام بھارت کو. ہم دینا چاہتے ہیں کہ اگر بھارت کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اتحاد کو نہیں توڑنا ہے. جس دن اتحاد توڑے گا خدا نہ کرے بھارت اس وقت مشکل میں پڑے. میسیج یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں دیش کی بات کریں یا دنیا کی بات کریں, آج دھرم کے نام پہ پورے دیش اور دنیا میں ہے جو ببال مچا ہوا ہے. مسلمان کرسچن سے لڑ رہا ہے, کرسچن ہندو سے, ہندو سکھ سے لڑ رہا ہے. تو پوری دنیا کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کس طریقے سے ہندو مسلمان اور کرسچن اور سکھ کس طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں پیسفلی, یہ میسیج پوری دنیا کو دے کے ان کو ایک میسیج سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طریقے سے رہ سکتے ہیں. کشمیر میں ایک پرانے سمے سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے, اگر یہاں گرو گرنتھ صاحب جی کا نگر کیرتن نکلتا ہے تو اس کو ریسیو مسلم بھائی کرتے ہیں. اگر امرناتھ یاترا آتی ہے تو اس کو سکھ اور مسلم ریسیو کرتے ہیں. اگنی پتھ کے تحت فوج کی تینوں شاخوں میں بھرتی کو لے کر نوجوانوں میں زبردست امنگیں دیکھنے کو مل رہی ہے. ضلع پنچ کے میندھڑ سب ڈویژن کے سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کو افواج میں سروس کے لیے میندھڑ گنرز 10 دنوں کی تربیت دے رہی ہیں اور مقامی نوجوان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فوج کی جانب سے یہاں اب ہل اسٹیڈیم میندھڑ میں صبح نوجوانوں کو فزیکل ٹریننگ دی جاتی ہے, جس کے بعد ان کو امتحان کی تیاری کرائی جاتی ہے اور کلاسز لی جاتی ہیں. بلنوئی, ساگرا, منکوٹ, جھجلم, گوہل, کالا بن سلوا اور دیگر علاقوں کے نوجوان یہاں ٹریننگ لے رہے ہیں. انہوں نے تربیت کی سہولت فراہم کرانے پر فوج کا شکریہ ادا کیا. یاسر ہے جی, ہم بارڈر ایریا کے رہنے والے ہیں. تو انڈین آرمی کی طرف سے ہمیں ادھر ٹریننگ کروائی جاتی ہے. صبح پہلے رننگ ہوتی ہے, پھر فزیکل وغیرہ کر کے پھر ہمیں جو ہے ریٹن کی تیاری کرائی جاتی ہے.
ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। हमें एक तो जो नशे वाले लड़के हैं उनको ड्रग्स से और दूसरी चीज़ों से दूर रखने की जो है एक अच्छी सोच है ये। मैं मनकोट का रहने वाला हूँ। इधर मेंढर शहर में ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। इंडियन आर्मी यहाँ पे ट्रेनिंग करा रही है अग्निवीर योजना से। 4 साल की ये भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है। इसमें मैं भी योगदान लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इधर ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। मनकोट में लोकल बॉर्डर एरिया के साथ से ये विलेज है मेरा, बहुत गोलाबारी होती है और सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी भर्ती को निकाला जाए। मैं गोल्ड का रहने वाला हूँ, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो जो सरकार ने ये स्कीम निकाली है अग्निवीर योजना की, तो यहाँ पे हमें इंडियन आर्मी की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी जाती है, मेडिकल भी कराया जाता है और रिटर्न की तैयारी भी की जाती है। इससे अच्छा हमें और कोई मौका नहीं मिलेगा इंडियन आर्मी में जाने। करगिल विजय दिवस की फतह की मशाल आज जिला गांधरबल के वुसन पहुंचा। फतह की मशाल को ग्रेस ब्रिगेड के कमांडिंग अफसर वुसन बटालियन ने अपने हाथों में लिया। तकरीब का मुशाहदा एनसीसी कैडेट्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ तलबा, असातिज़ा, नौजवान, आम शहरियों और साबिक फौजियों और वीर नारियों ने किया। कंगन में फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब के दौरान शुरका ने करगिल जंग के बहादुर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर आर्मी गुडविल स्कूल मुरगंड के तलबा ने रंगारंग लोक डांस पेश किया। जैसा कि हम सब लोग को पता है कि कारगिल वॉर जो हुआ था उसी के रिगार्डिंग आज जो है हम लोग कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो है कारगिल विक्ट्री फ्लेम लाई थी यहाँ पे डंपिंग पार्क में, तो जो ये कारगिल विक्ट्री फ्लेम है ये आज हमारे यहाँ पहुँची है। सो इस वजह से जो है हम लोग आज ये जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं विजय दिवस। वी ऑल नो टुडे इज़ अ कारगिल विजय विक्ट्री और हम बहुत ही खुश है ये मना के। हमें पता है हमारे कारगिल के जवानों ने यहाँ इस टाइम पे शहादत दी और विक्ट्री हासिल की, और हम एनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो अपने दिल में पैट्रियटिज्म पाले। थैंक यू। पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने आज वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और एलजी इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो उनकी मुलाजिमतों को वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करें। ये मुलाजमीन वादी कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के पेश नज़र मुलाजिमतों को वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने के अपने मुतालबे को लेकर गुज़श्ता 2 माह से ज़्यादा अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। इन मुलाजमीन ने आज जम्मू में आरसी के दफ्तर में एहतजाज जारी रखा और इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत उनके हकीकी मुतालबात को तस्लीम करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही है और ना ही कोई कदम उठा रही है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात को जल्द पूरा न करने की सूरत में एहतजाज को मज़ीद तेज़ करने का इंतबाह भी दिया। के हालात जो है किसी से छुपाए नहीं छुपते हैं, सरकार भी जानती है, समाज भी जानता है। हम 12 साल से अपनी नौकरियां विपरीत परिस्थितियों में कर रहे थे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मगर आज ऐसी विपत्ति आन पड़ी है, हमारी जानें जो है वो दावों पर है। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, विनम्र भाव से फिर से अपील करते हैं, एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, प्रधानमंत्री साहब से, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप अपने बच्चों की बात सुनिए। आप कश्मीरी पंडित समुदाय जो पिछले 32 साल से प्रताड़ित है, उनकी आवाज़ सुनिए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। हम आने वाले समय में ये हमें भरोसा है कि सरकार हमें मौका देगी, जो हमारी डिमांड है हम उनके सामने रखेंगे और उसका समाधान ज़रूर निकालना है, क्योंकि ये 12 साल अब हो गए। 12 साल में एम्प्लॉय के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। मुझे लगता है अब वो ज़्यादती हैं उसको ख़त्म करने का जो है वो समय आया है और एम्प्लॉय की बात अब सरकार को जो है वो सुननी है। अगर वो एम्प्लॉय की बात नहीं सुनेगा तो इसका मतलब फिर एम्प्लॉय फिर एक बार खतरे में पड़ गया है। शिवसेना के कारकुनों ने आज जम्मू में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर यूटी में तेज़ी से बढ़ती हुई बेरोज़गारी के मसले के खिलाफ अपनी नाराज़गी दर्ज करने के लिए एहतजाज किया गया। शिवसेना के मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी की क़यादत में मरकज़ी और एलजी की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। बसूरत दीगर आने वाले दिनों में एहतजाज को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का युवा अपराध की तरफ अग्रसर हो रहा है, आतंकवादी संगठनों के माया जाल में फंस रहा है और इसके साथ साथ नशाखोरी का शिकार हो रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और क्या है, जो देश का ताज होता था जम्मू कश्मीर, जिसको देश का मुकुट कहा जाता था, धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, आज वह देश के आंकड़े इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 1, जम्मू कश्मीर कुंवारेपन के अंदर नंबर 1। यहाँ के युवा सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर पे कुंवारे हैं और देश हमारे पूरे देश के मुकाबले जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर पहुंच चुका है, जो दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसले पर एलजी इंतजामिया पर हमला किया।
وہ آج جموں شہر کے کچھ حصوں کے دورے کے دوران پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر رہنما غلام حسن میر، منجیت سنگھ چودھری، ذوالفقار علی اور دلاور میر وغیرہ بھی موجود تھے۔ بخاری نے نوجوانوں کے مسائل کو لے کر سڑکوں پر آنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایل جی انتظامیہ نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں جذب کرنے کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر سلیکشن لسٹیں منسوخ کر رہی ہیں۔ اس طرح ہزاروں نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ جب کسی قوم کا یوتھ سڑکوں پہ پریشان ہو، چاہے آپ فائنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹس کی بات کریں، چاہے آپ وہ جو آپ کے بارڈر بٹالینز والے ہیں، چاہے آپ کے سی ایس ایف والے ہیں، چاہے آپ کے پولیس کے ابھی کانسٹیبل سب انسپیکٹر کے لیے جو لوگ تھے، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بے شرم سرکار کہتی ہے کہ اس میں دھاندلیاں ہوئی۔ کیا یہی سرکار کا کام ہے کہ پہلے امتحان لے لیں، 2 سال بچے محنت کریں اور پھر کہیں دھاندلیاں ہو؟ جنہوں نے دھاندلیاں کی ہیں ان کو چھوڑ دو، باقی سب بچوں کو they should be selected and فوراً ان کے لسٹ نکلنا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر تاج محی الدین نے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سپریمو الطاف بخاری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بخاری کے حالیہ بیانات سے کچھ گڑبڑ کا واضح طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو آنے والے دنوں میں جموں کشمیر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تاج اڑی میں یوتھ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ کنونشن میں نوجوان اور سینئر پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تاج محی الدین نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ ہم آہنگی سے کام کریں تاکہ فرقہ پرست طاقتوں اور ان کے حامیوں کو کنارہ کیا جا سکے۔ الطاف صاحب نے کچھ دن پہلے اپنی تقریر میں کہا کہ رشید انجینئر صاحب کو چھوڑ دیں اور وہ آپ لوگوں میں بہت جلدی ہوں گے۔ الطاف صاحب نے تو سرکار میں ہے مگر اندرونی بات تو ہے کچھ۔ ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ رشید انجینئر کو چھوڑ رہے ہیں جب تک گورنمنٹ آف انڈیا یہ کہتی رہی کہ وہ جی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، وہ حوالہ کیس میں پھنسا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں اندر کی بات تو نہیں آتی۔ اندر کی بات ہے کہ وہ بھی نکلیں گے، وہ بھی الطاف صاحب کے ساتھ ملیں گے، وہ بھی باقی پارٹیوں کے ساتھ ملیں گے اور پھر اس کے بعد بی جے پی کا ساتھ دیں گے۔ یہ بات سمپل ہے۔ جموں کی ٹریڈ فیڈریشن نے ٹیکس ٹیرر کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹریڈرز فیڈریشن ویئر ہاؤس کے بینر تلے آج جموں میں زبردست احتجاج درج کرایا گیا۔ پیکڈ اور لیبل لگائی گئی کھانے کی چیزوں پر 5% جی ایس ٹی لگانے کے فیصلے کے خلاف مظاہرہ منظم کیا گیا۔ جی ایس ٹی کونسل کے فیصلے کی جم کر مخالفت کی گئی۔ تاجروں نے نعرے بازی کرتے ہوئے فیصلے کو عوام دشمن قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ غریب لوگ بری طرح متاثر ہوں گے کیونکہ پیک اور لیبل والی اشیاء خوردنوش پر 5% جی ایس ٹی عائد کرنے کے بعد تمام ضروری اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ بغیر کسی تاخیر کے فیصلے کو واپس لینے کا مرکزی وزیر خزانہ سے مطالبہ کیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ برانڈیڈ آئٹموں کے اوپر ٹیکس تھا جو 15% لوگ جو ہے اس کے دائرے میں آتے تھے، لیکن اب 85% اس کے دائرے میں آ رہے ہیں اور سارا ٹیکس جو ہے غریب کی جنتا کی تھالی پہ پڑ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھو، ایک طرف ہمارے پردھان منتری غریبوں کو مفت راشن دے رہے ہیں، دوسری طرف جی ایس ٹی کونسل غریبی لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے، غریبی ورگ کے نیچے کے لوگوں کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہا ہے۔ اگر ایسا آ رہا تو ٹیکس کی برسات ہو جائے گی۔ یہ ٹیرر ٹیکس ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ فائنانس منسٹر سے اپیل ہے یہ ٹیکس کو واپس لیا جائے، نہیں تو وپاری ورگ سڑکوں پہ ہوگا، عام جنتا بھی جو ہے سڑکوں پہ اترے گی۔ اس کے فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے عہدے کے لیے امتحان میں کوالیفائی کرنے والے امیدواروں نے آج تیسرے دن بھی جموں کشمیر میں احتجاجی مظاہرے جاری رکھے۔ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے امتحان منعقد کرایا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی افواہیں ہیں کہ فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی سلیکشن لسٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ امیدواروں نے امتحان میں دھوکہ دیا ہے۔ جموں میں ان امیدواروں نے سلیکشن بورڈ کے خلاف نعرے لگائے اور ایل جی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ صحیح طرز عمل اختیار کرے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کچھ امیدواروں نے امتحان میں دھوکہ دیا ہے تو منتخب ہو چکے امیدوار اس کی غلطی کی قیمت کیوں چکائیں۔
उन्होंने कहा कि उन्हें ज़हनी दबाव का शिकार बनाया गया है। इन उम्मीदवारों ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बदनज़मी का नोटिस लें, क्योंकि बोर्ड्स ने ही अहल उम्मीदवारों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने दिसंबर 2020 में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सब ऑडिटर और दीगर पोस्टों के लिए इश्तिहार दिया था। इम्तिहान रवां बरस मार्च में मुनक़िद हुआ था। बोर्ड ने जारिया साल 22 अप्रैल को मेरिट लिस्ट शाया की थी। PSI का एग्ज़ाम हुआ जिसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ था और वहाँ पे देखा गया कि नॉन रैंडमाइजेशन है। कोई इनने बहाना बता दिया नॉन रैंडमाइजेशन का कि एक ही इलाके के बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए, इस वजह से उस पर प्रोब बिठाई गई है। बट सर फाइनेंस अकाउंट असेसमेंट तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर होता तो आपने तो रिजल्ट के टाइम ही इस पर प्रोब बिठा देनी चाहिए थी। तो हमारा यही डिमांड है कि जब तक हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती हम यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। और अगर हम इंक्वायरी के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं सर, अगर कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है, इन केस कोई निकलता है, जिन जिन पे एलिगेशन लगे वो सब यहाँ पे मौजूद है, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी डिग्रीज, हर एक चीज़ लेके बैठे हुए हैं। आप इंक्वायरी कीजिए, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। इन केस कोई निकलता है हम एफिडेविट रेडी हैं देने को कि कोई भी निकलता है उसको इन फ्यूचर या कभी भी आपको पता चलता है उसको डिबार कर दीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए। हम पूरा कोऑपरेट करने को रेडी हैं सर। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से है कि हम लोग आप लोगों को टैक्स देके कुर्सियों पे बिठाते हैं और आप लोगों ने आज हमें रोड पे बिठा दिया। और हमारा क्राइम क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क किया हुआ है सर। हम ये डिजर्व नहीं करते हैं सर। हम मेरिटोरियस स्टूडेंट है सर, हम अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है और हम ये हमारा रोज़ का काम नहीं है। हम लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं सर। कभी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोटेस्ट में नहीं गए, कॉलेजेस के प्रोटेस्ट में नहीं गए सर। आज हमें 2 साल के हार्डवर्क की वजह से सर हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो सर जिस भी हम सेक्रेटरीट में जाते हैं, हम कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे से जाते हैं, वो हमें समझा के भेज देते हैं कि अगर आप लोग मेरिटोरियस हो तो आप लोग फिर से एग्ज़ाम दे दो। सर हम फिर से एग्ज़ाम दे देंगे और उन री एग्ज़ाम वालों को हम ये बोल रहे हैं कि हम फिर से एग्ज़ाम देंगे और इससे भी 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आएंगे। पर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ये सवाल है कि क्या आप लोग हमारे 2 साल वापस दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते हो तो फिर आप हम हमारे और अब बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम दो। हम री एग्ज़ाम भी दे देंगे और जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे घर पे आके राशन पानी, मेरे छोटे भाई बहन की फीस, जितना भी उनका पढ़ाई का खर्चा चल रहा है या मेरे घर की जितनी भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर अगले 2 साल या जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं होते वो हमें देने के लिए तैयार है? अगर वो तैयार है तो सर हम फिर से लाइब्रेरीज में बैठने के लिए तैयार है। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज अदबी संगत कश्मीर के ज़ेर एहतमाम से एक अदबी तकरीब का इनकाद किया गया। वादी के मारूफ कलमकार, नक्काद, दानिश्वर और साबिक सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी मोहम्मद यूसुफ नैग ने इस तकरीब की सदारत की। ट्राइबल डिपार्टमेंट जम्मू के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, वाइस चांसलर गुलाम शाह बादशाह, यूनिवर्सिटी राजौरी के प्रोफेसर अकबर मसूद, श्रीनगर दूरदर्शन केंद्र के साबिक नाज़िम आला गुलाबुद्दीन ताहिर भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब के दौरान कुरान मजीद का गुजरी ज़बान में तर्जुमा रिलीज़ किया गया। डॉक्टर रफ़ीक अंजुम का कुरान के तर्जुमे की रुनुमाई यहाँ अंजाम दी गई। SP मंजूर अहमद, सलामुद्दीन बजाड़, चौधरी हक नवाज गुरसी, डॉक्टर रफ़ीक अंजुम, इमाम जामिया गोल मार्केट, मुफ्ती निज़ामुद्दीन नदवी, मोहतरमा बेगम जान, मोहम्मद मंशा खाकी, अब्दुल गनी आरिफ, चौधरी गुलाम हैदर के अलावा मुख्तलिफ मकामात से आए हुए अदीबों और दानिश्वरों ने तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम की शुरुआत से काबिल मुंतज़िम गुलाबुद्दीन ताहिर ने तफसीलात बताई। जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी है उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब जो हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए इस तकरीब का अहतमाम है, क्योंकि उन्होंने गोजरी ज़ुबान की तारीख़ को एक हैसियत देते हुए, उसकी हैसियत मानते हुए उससे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर मुतारफ़ किया है, यानी कि वहाँ गोजरी चेयर का क़याम अमल में लाया है। उस ताल्लुक़ से उनका शुक्रिया। और साथ साथ 3 और मतबूआत जो गोजरी को नसीब हुई हैं, पैगाम हसन, अलहाज हसनदीन हसन की किताब है जो पुंछ के एक मोतबर शायर गुजरे हैं, वो किताब रिलीज़ हो रही है आज की तकरीब में। उसके अलावा एक मुकामी शायर हैं यहाँ हमारे कुलगाम ज़िला के, मोहम्मद शरीफ कमर, उनकी किताब है मणका मोती जो गोजरी को एक शेरी मजमूआ नसीब हुआ है, उसके रिलीज़ का एहतमाम है आज की तकरीब में। और साथ ही गुज्जर हॉस्टल अनंतनाग जो है उसमें बच्चों की तहरीर करदा कुछ तख्लीक़ात हैं शामिल, शुआएं मजमूए का नाम है, वो भी आज की तकरीब में रिलीज़ हो रहा है। अल्लाह के पैगाम को आखिरी नबी के बाद पूरी दुनिया तक पहुंचाना वो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी था। और अगर हम बिल्कुल थक हार के बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, मुश्किल से आज भी एक अलमिया ये है कि हम सब लोगों ने कुरान को घरों में ऐसी जगह पे रखा है जहाँ बच्चे का हाथ ना पहुँचे, जहाँ बेअदबी ना हो जाए। हालांकि ये किताब अल्लाह ताला ने इसलिए उतारी थी कि हर आदमी के सराहने होती
और वो बार बार उसको ऐसे पढ़ता जैसे महबूब का खत पढ़ा जाता है। तो मैंने कोशिश की कि मादरी ज़ुबान में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जिस सोसाइटी पे, जिस आखिरी पैगंबर पे नाज़िल हुआ था, वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी। तो ऐसा नहीं है, ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर जिस पे उतरी, हमारी भी ट्राइबल लैंग्वेज है और हमें उसमें उतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई जितनी किसी मॉडर्न ज़ुबान को मुश्किल पेश आती है उसको ट्रांसलेट करने में। नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हरन गांधरबल में एक अदबी और सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद ने की। इस मौके पर सूफ़ी शायर गुलाम मोहम्मद अहंगर की किताब सैर बपीर का इजरा किया गया, जिस पर सहाफ़ी रहीम रिजवान और कलमकार शबनम बशीर ने तबसरे पेश किए। तकरीब की निज़ामत नामवर सहाफ़ी रशीद ने अंजाम दी। इस मौके पर सूफ़ी शायर की दस्तारबंदी और अब्दुल अहद फरहाद की शालपोशी की गई। इस तकरीब में कई नामवर सहाफ़ी और समाजी कारकुन मौजूद थे। आज ज़िले गांधरबल के हरन कच्छन इलाके में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया है निगीनी कल्चरल फोरम श्रीनगर की जानिब से। इसकी सदारत वादी के मशहूर नकाद शायर और ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद ने की और इस मौके पर निज़ामत के फ़राइज़ मशहूर सहाफ़ी रशीद राहिल साहब ने अंजाम दिए, जबकि निगीनी कल्चरल फोरम के सदर शबनम बशीर ने इस पे किताब पे तबसरा किया और मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस सूफी बुज़ुर्ग को जो यहाँ कच्छन गांधरबल में रहता है, जिसका नाम है गुलाम अहमद अहंगर अलमरूफ अमस बिखार। और इस सूफी बुज़ुर्ग की किताब जो है उसकी रस्म रहनुमाई आज हुई है। सीर बा पीर नामी इस किताब में सूफियाना कलाम दर्ज किया गया है और ये कलाम जो है हमारे आने वाली नस्लों के लिए बाज़ाब्ता एक मुहिम और तहरीक और एक तरबियत है। सीर बापीर आज यहाँ इसकी रस्म रूनवाई अंजाम दी गई। इसका एहतमाम नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम किया गया था। इसमें वादी के कई सरबराह शायर, कलमकार और सहाफ़ियों के अलावा मकामी आबादी के कई ज़ी-शऊर लोगों ने शिरकत की। इस मजलिस में शायरी पर तबसरे किए गए और मौजूदा दौर में इस बात पर जोर दिया गया कि हमें सूफीज़्म के असूलों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी तहजीब और हमारी सकाफत ही हमारा एक सरमाया है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सुमनबल बद्रन मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली के ताउन से 2 रोज़ा फोक म्यूज़िक फेस्टिवल का आगाज़ किया। इफ्तिताही तकरीब में दूरदर्शन के साबिक़ डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफ़ीक मसूदी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि सरकर्दा सकाफ़त साज अदीब और महक़्क़िक़ हसरत गड्ढा ने नशिस्त की सदारत की। रवायती ज़ुबन सोज़ में ज़ुबन जलाकर फेस्टिवल का आगाज़ किया गया। सदारती अवान में फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड याफ्ता गुलकार गुलजार गनाई और मारूफ ब्रॉडकास्टर निसार नसीम, शफीक कुरैशी, अब्दुल रशीद शहबाज, पीरजादा अशरफ, डॉक्टर हफीजुल्लाह लोन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ मौजूद थे। फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने इस्तक़बालिया और कलीदी खुतबा पेश किया। गुलजार अहमद गनाई, मंजूर अहमद शाह, मंजूर उल हक और शफ़ी सुपुरी ने अपने फ़न का मुज़ाहरा करके सामीन में खूबसूरत समा बांधा। इस मौके पर गुलजार अहमद गनाई, मंजूर अहमद शाह, मंजूर उल हक और शफ़ी सुपुरी के एजाज़ात से नवाजा गया। या उर्दू शायरी है या मैं जो गाता हूँ सूफ़ी शायरी, वो उसकी तरफ रुझान हो जाए आज के यूथ को। पढ़ाई के साथ साथ अगर आज का यूथ इस कल्चर के साथ आ जाए, इस शायरी के साथ आ जाए और इन सूफ़ी बुज़ुर्गों का कलाम सुने, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम, बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन जब तक ये काम गवर्नमेंट ये इसमें पहल नहीं करेगी तब तक ये नहीं हो सकता है। ऐसी फॉर्में बहुत सारी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है गुलशन कल्चरल फोरम ने जो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी है। यहाँ समनबल बद्रन में 2 रोज़ा म्यूज़िक फेस्टिवल गुलशन कल्चरल फोरम के एहतमाम से मुनक़्क़िद हुआ, जो संगीत नाटक एकेडमी के माली ताउन से हमने शुरू किया है और इसमें बहुत से फ़नकार परफॉर्म करेंगे इन 2 दिनों के दरमियान। इसकी ख़ास बात यह है कि इस प्लेटफार्म पे जहाँ वादी के मारूफ और मुक़्तदर और इंटरनेशनल फेम के फ़नकार परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ
कुछ नवनिहाल फनकार भी जो अभी इस फील्ड में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उनके साथ साथ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इस तरह ये फोक म्यूज़िक के शौकीन भी यहाँ महसूस हुए। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज ख़ास तौर पर माजूर बच्चों के लिए एक लाइव म्यूज़िकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मशहूर गुलकार वक़ार खान और उनके बेटे बैंड ने यहाँ अपनी परफॉर्मेंस से बच्चों को जश्न मनाने का मौका फराहम किया। वक़ार खान के गानों पर बच्चे रक़्स करते नजर आए। छोटे तारे फाउंडेशन ने गटेमंजगाश के उन्वान से इस तकरीब का अहतमाम किया था। इन बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा करना और उन्हें तफरीह फराहम करना इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद था। मुंतज़मीन का कहना था कि माजूर बच्चों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उनके लिए जो भी काम किया जा रहा है वो बहुत कम है। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ढली मेरी रात। हमारी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की जो 30 साल जब हम देखेंगे, इन बच्चों की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं, जिस पे आज की डेट में हमें काम करने की बहुत ही ज़रूरत है। जब हम सेंसस 2011 देखेंगे और उस हिसाब से 3.5 लाख हमारे इस सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं एंड अडल्ट हैं, लेकिन हम उस चीज़ से डिफ़र करते हैं बिकॉज आज की डेट में हम अगर देखेंगे इन बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस पे काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट। ऑब्जेक्टिव वही था इवेंट का कि हम लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैला सकें, आम लोगों के बीच में, कि ये बच्चे भी जो हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा है सोसाइटी का और हमें इन्हें आइसोलेटेड फील नहीं कराना है। तो वो एक कोशिश थी इस इवेंट के ज़रिए से हम थोड़ा सा अवेयरनेस फैला सकें और साथ साथ में एक फ़ंड रेजिंग इवेंट था जिसमें हम थोड़े बहुत फंड्स अगर कुछ जमा कर पाएँ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनके पे काम करती हैं, ऐसे जिनको कोई गवर्नमेंट का या किसी ऐसी बॉडी का सपोर्ट नहीं होता है, तो वो एक कि अगर थोड़ा बहुत हम कुछ पैसा भी जमा कर पाएँ और उन बच्चों के लिए जो है उनकी पढ़ाई के जो भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स उनकी चलती हैं उन पे हो पाएँ। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग माशाल्लाह अच्छे भर भर के लोग आए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और होपफुल हैं कि आगे भी जो है ऐसे इवेंट होते रहें ताकि उन बच्चों को भी एक थोड़ा सा अपनी जो जैसा आपने कहा स्ट्रेस लेवल या बाकी जो सब चीज़ें परेशानियाँ उनसे हट के एक थोड़ा सा माहौल मिले। आज आया मुझे मजा इधर रोह में। रीवा बताओ आज यहाँ पे जो म्यूजिकल प्रोग्राम था कैसा लगा, मजा आपको यहाँ पे? अच्छा। बांडीपुरा के सरहदी तहसील तुलेल में अंगाई कोट नामी बस्ती में लोग चलने फिरने के लिए लकड़ी का एक आरजी पुल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी आबादी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जिला इंतजामिया का कहना है कि बस्ती के लिए इस साल के आखिर तक नया पुल तामीर किया जाएगा। यह है बांडीपुरा से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बडुआब तुलेल के अंगाई कोट गांव का एक मंजर। घने जंगलों के दामन में वाक़े इस गांव के लोग बरसों से एक गैर महफूज पुल इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के सामने से एक तेज बहाव वाला नाला गुजरता है जो कि रमन नाले के नाम से जाना जाता है। इस नाले पर लोगों ने अपनी मदद आप की बुनियाद पर लकड़ी से एक पुल तामीर किया और चलने फिरने के लिए यही पुल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गांव के अंदर एक सरकारी मिडिल स्कूल भी है और इसमें ज़ेर तालीम 100 के करीब बच्चे भी आने जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। मुकामी लोगों का कहना था कि बारिशों के दौरान नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिसके बाद पुल अबूर करना जानलेवा साबित होता है। सर हमारे तो बार बार रिक्वेस्ट यही रहती है, खासकर पुल की वजह से। हमारा जो पुल है देखो आप बिल्कुल देख सकते हो कि बिल्कुल खस्ता हो चुका है, इसकी जो बेस है वो भी डैमेज हो चुकी है। कई बार हमने ये मुतालबा किया, कई मीडिया वाले आगे उनको भी बताया कि हमारा ये पुल जो है इसको बनाने के लिए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बहुत जब बारिश हो रही है, बारिश की वजह से तो हम बिल्कुल इस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते। सब कुछ बचे बचे यहाँ से गुजरते। हमारा जो पुल है 10 बार हमने मेरे भी चढ़ाया, बोला कोई भी हमारा ऑफिसर आ गया, एमएलए आ गया, हमारा वजीर आला आ गया, हमने वहां तक पहुंचाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया यार। बस वोट के चक्कर में आ गया, वोट खींच दिया तो वो चल पड़ा। उधर इस मामले पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद का कहना था कि नाबार्ड के तहत इस बस्ती में करोड़ों रुपए की लागत से पुल तामीर होने जा रहा है।
इस साल के एंड तक हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो पूरा फुट ब्रिज है नया बन के तैयार हो जाएगा। अभी वहाँ पे वो ट्रेडिशनल ब्रिज है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इसको प्रॉपर फुल फ्लेजेड सेफ ब्रिज एक बना के हम इस साल में कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज और तुलेल में कई मुकामात पर नदियों नालों पर यही रिवायती पुल देखने को मिलते हैं। ताहम इंतजामिया ने मरहलेवार तरीके पर कई नए पुल तामीर कराए हैं और मजीद पुल तामीर करने का सिलसिला भी जारी रखा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस लीडर नसीर अहमद मीर ने बोचो कोकरनाग के आग मुतासर अफराद की फौरी बाज़ाबतकारी का हुकूमत से मुतालबा किया है। नसीर मीर ने डीडीसी मेंबरान और म्यूनसिपल कमेटी के कोकरनाग के सदर समेत दीगर लीडरान के हमरा बोचो का दौरा किया और आग मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुतासर अफराद के हक़ में ज़मीन अलॉट करने का हुकूमत से मुतालबा किया ताकि वहाँ पर उन्हें दोबारा बसाया जा सके। नसीर मीर ने ज़िला इंतज़ामिया से भी अपील की कि वो इंसानी बुनियादों पर मुतासरीन के हक़ में मज़ीद इमदाद वागज़ार कराएँ। लोगों से बात की, उनकी पहली डिमांड और हमारी पहली डिमांड है कि उनको लैंड कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं। ऊपर से बिजली की लाइन जा रही है और किसी ने अभी तक उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। कल को रोड वाइडनिंग भी होनी है और पहली हमारी डिमांड है कि उनको ज़मीन मिलनी चाहिए, जिस पे फिर हम सिविल सोसाइटी भी और हम लोग सब मिलके उनको मदद करेंगे मकान बनाने में। हमारी शेख कम्युनिटी वहाँ रहती है और उनके साथ किसी ने तवज्जो नहीं दिया है कभी, और ये तीसरी बार हादसा हुआ है पिछले कुछ सालों में। और हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, पहले उनको। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हैगाम सोपुर में मनशियात के इस्तेमाल पर एक सेमिनार का इनकाद किया। सेमिनार में असातिज़ा, तलबा और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मनशियात के बारे में बुरे असरात पर रोशनी डाली और नौजवानों में बढ़ते हुए मनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। SSP सोपोर शब्बीर नवाब ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस मनशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है और मनशियात की पेडलिंग में मुलविस पाए जाने वालों पर शिकंजा कसा है। गन कल्चर ऐसा ऐसा ख़त्म होने लगा, लोगों में सोच आने लगी, तो अब पार से जो हमारे हमसाया मुल्क है उन्होंने चाहा कि चलो अब हम और एक चीज़ उनके बीच में डालें, और जिस चीज़ की वजह से कि यहाँ की नस्ल डिप्रेशन का शिकार हो जाए। और वो क्या है? वो हीरोइन है, वो ड्रग्स है। और ड्रग्स अगर देखा जाए, ड्रग्स की वजह से अगर एक इंसान, एक जवान की मौत वाक़ा हो जाती है, तो उस एक मौत के साथ साथ उसकी माँ भी हमेशा जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुजारती है। उसका बाप हमेशा के लिए मर जाता है। सोसाइटी ख़त्म हो जाती है, कल्चर ख़त्म हो जाता है। हमें चाहिए कि इस जंग के खिलाफ और अपनी एक जंग शुरू करें। न्यूज़ 18 को एक खुफिया ख़त मिला था जिसमें डोडा में DDC चेयरमैन के लिए इलेक्शन हुए थे। इसमें कांग्रेस के एक DDC मेंबर ने क्रॉस वोटिंग करते हुए BJP को वोट दिया था। कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने घाट हल्के की कांग्रेस मेंबर गुलशन आरा का नाम लिया है। गुलशन आरा के शौहर रियाज अहमद शेख ने कमेटी के इल्ज़ामात को सिरे से खारिज किया है। रियाज अहमद के मुताबिक कमेटी ने गुलशन आरा से कोई राब्ता नहीं किया और जो इल्ज़ामात उनकी अहलिया पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। कल की डेट में एक खबर सुनी है, चैनल के ज़रिए सुनी, मीडिया के ज़रिए सुनी। उस बारे में मुझे या मेरी मिसेस जो DDC काउंसलर हैं गुलशन आरा जी, कोई इल्म नहीं है, ना ही मुझे कहीं पार्टी से कोई लेटर मिला है, ना ही हमें कुछ पूछा गया है। इन साजिशों से बच कर रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिशें हो रही है। ना किसी पार्टी ने मुझे कोई लेटर भेजा, ना किसी ने फ़ोन किया, ना किसी ने पूछा, बगैर किसी पूछताछ के ही फिर ये कौन से अनसर हैं जिन्होंने इस किस्म की अफवाहें फैलाई, जिनने ये खबर आप तक पहुंचाई। उन लोगों से ये सवाल कीजिए कि उन्होंने हमको कंसर्न किया, हमसे पूछा, हमको कभी फ़ोन भी किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड सेफ्टी DFCOUT लद्दाख के ताउन से करगिल में वक्तवन का एहतमाम किया।
FSSAI کے اراکین فوڈ سیفٹی لداخ اور گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے طلباء نے وقتاً میں حصہ لیا۔ آڈیٹوریم ہال میں FSSAI کے اراکین نے صحیح کھانا کھانے اور جنک فوڈ سے بچنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ TFC کرگل میں اختتامی تقریب میں FSSAI کے اراکین نے مختلف کھانوں کے بنیادی فوائد پر روشنی ڈالی۔ ICAR کے 94ویں یوم تاسیس کی تقریب کے موقع پر کرشی وگیان کیندر کرگل نے ہیڈ کوارٹر سے لائیو سٹریمنگ کے ساتھ ساتھ ایک روزہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس موقع کے مہمان خصوصی آغا سید مہدی، ایگزیکٹو کاؤنسلر برائے باغبانی لداخ AHDC تھے۔ کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کی لائیو سٹریمنگ ہوئی جس کا افتتاح مرکزی وزیر برائے زراعت نریندر سنگھ تومر نے کیا اور منتخب کسانوں کے ساتھ عملی طور پر بات چیت کی۔ آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ آج کے دن کی وجہ سے ہندوستان میں تقریباً پورے فارمرز طبقے کو کافی پروگرس یعنی کافی ترقی کر چکے ہیں۔ رنگ ہاتھیں جی کا 94th SCR فاؤنڈیشن ڈے سیلیبریٹ بسپین کے کارگل ون کا جو کہ پورا آل انڈیا تھرو آؤٹ انڈیا نوچیز ڈے سیلیبریٹ بینچور جی ہوں فارمرس مور دین 200 فارمرس انوائٹ بسپین دینا پرٹیکولرلی سو فارمرس جو تھے جن کا گری جگ پیانوک SCR فاؤنڈیشن ڈے کا 75,000 فارمر سکسیس سٹوری ڈبل فارمنگ انکم سکسیس سٹوری۔ کشمیر میں نوجوانوں کو سائیکلنگ کی طرف راغب کرنے کی غرض سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ٹنگ مرگ سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی 2 اسکیئر وسیم احمد اور جنید احمد نے ایک اچھی پہل شروع کی ہے۔ وہ اب سائیکلنگ میں بھی لوہا منوا رہے ہیں۔ دونوں اسکیئرز نے آج ٹنگ مرگ سے گریز وادی تک کا سفر سائیکل سے شروع کیا۔ مشہور سیاسی کارکن عادل نذیر خان نے ہری جھنڈی دکھا کر ان دونوں کھلاڑیوں کو روانہ کیا۔ دونوں کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ گریز ویلی جاتے جاتے وہ نوجوانوں کو سائیکلنگ کے اس فیلڈ کی طرف خصوصی طور پر راغب کروائیں گے تاکہ اس میدان میں کشمیر سے مزید نوجوان نکل آئیں جو ملک کا نام روشن کر سکیں۔ ایکسپیرینس رہے گا ٹنگ مرگ ٹو گریز، تو اسکیئنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں مائنڈ میں ہی آیا سائیکلنگ کا، اس کے جو ٹنگ مرگ سے گریز ہم کریں گے، جو ہم بائی روڈ جائیں گے اس میں تھوڑا سپیڈ کم رہے گا، جو راستے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا وہ اچھا ملے گا لوگوں کے، تاکہ مین مقصد جو ہے مین موٹیو ہے اس سائیکلنگ کا کہ یوتھ اس سے انسپائر ہو جائے۔ ہمارا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے ٹنگ مرگ سے گریز تک، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ روڈز میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے، تو ہم اگر یوتھس ملتے ہیں تو ہم انہیں کاؤنسلنگ کریں گے کہ ایڈونچر کی طرف آئے۔ زیادہ تر ہم سکینگ کرتے ہیں، تو آج کل ہم سائیکلنگ کے ساتھ بھی تھوڑا کنیکشن بڑھا رہے ہیں۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں مشن کلین ڈرائیو کے نام سے ایک صفائی مہم شروع کی گئی۔ یہ مہم سنو موبائل ایسوسی ایشن گلمرگ نے جموں کشمیر کیبل کار کارپوریشن کے باہمی اشتراک سے کی ہے۔ اس صفائی مہم کا مقصد گلمرگ کو آلودگی سے صاف و پاک رکھنا اور قدرتی خوبصورتی اور گلمرگ کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے۔ اس مہم کا آغاز گلمرگ کیبل کار کے مینیجنگ ڈائریکٹر و گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر غلام جیلانی زرگر نے کیا۔ اس موقع پر کیبل کار کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کافی تعداد میں سنو موبائل ایسوسی ایشن کے اراکین اور دیگر ٹورسٹ گائیڈز نے شرکت کی۔ سیاحوں نے اس اقدام کی ستائش کی۔ صفائی کا ابھیان شروع کر رہے ہیں سنو موبائل ایسوسی ایشن گلمرگ اور JK کیبل کار کارپوریشن، دونوں آپس میں کوآپریشن کر کے یہ ڈرائیو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کچھ 80 ہمارے والنٹیئرس آج یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارش بھی زبردست ہو رہی ہے، بٹ اس بارش میں بھی ان کا ولولہ جو ہے، ان کا جوش جو ہے وہ پورا برقرار ہے اور ان کے اسپرٹس ہائی ہیں، اور یہ صفائی کا ابھیان جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہم فارورڈ پہ بھی جائیں گے۔ رفیع آباد اور جناگیر کے نوجوانوں نے سڑکوں کی خستہ حالی کے خلاف DC آفس بارہمولہ کے اندر خاموش احتجاج کیا۔ پلے کارڈز اٹھائے نوجوانوں نے اپر رفیع آباد میں جنم پازل پورہ روڈ اور جناگیر سوپور میں جناگیر چتک روڈ کی تجدید و مرمت کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ 4 سال سے سڑکوں کی خستہ حالی سے پریشان ہیں اور متعلقہ محکمہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سہرش اصغر نے احتجاجی نوجوانوں کو اپنے چیمبر میں بلایا اور انہیں یقین دلایا کہ تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے بعد ان سڑکوں پر کام جنگی بنیادوں پر شروع کیا جائے گا۔
बड़े इश्यूज है। एक तो हमारा सदका वटलब रोड जिसकी इनाग्रेशन 2016-17 में हुई थी, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। डी साहब ने उनको कॉल करके इन्होंने वार्न भी किया है और इंशाल्लाह इन्होंने भी एश्योर किया हमें कि कल से हाँ काम वहाँ पे स्टार्ट होगा सदका वटलब रोड पे। और दूसरा इनका जो है ये जो डेंगी वाचा पाजलपुरा रोड, तो इस पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा। और नहीं होता है तो विल गो फॉर हंगर स्ट्राइक, जैसे हम सब ने इरादा किया है। हम तो ये हम इनको दिखाएंगे कि यूथ पावर क्या होता है। यही वजह थी यहाँ आने का कि प्रोटेस्ट के घर से हम आए थे, लेकिन डीसी मैडम से हम मिले तो बहुत ही खुश हुए कि उन्होंने एश्योर किया कि रोड जो पाजलपुरा डिंगी बच्चा रोड है, जो एक इलाका है, बहुत ही बड़ा इलाका है, वो टूरिस्ट हब है वहाँ पर, मगर उसको नज़रअंदाज किया गया है कि इस वजह से रोड की वजह से रोड खस्ता हो चुका है, ठेकेदार जो मनमानी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए, मैडम से मिले, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का कि उन्होंने हमें एश्योर किया कि काम जल्द अज जल्द उस पर शुरू होगा और काम इसी सीजन में कंप्लीट। श्रीनगर के अहमदनगर के करीब 90 फुट रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार खातून शदीद तौर पर जख्मी हुई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक सवार रोड के सीधी जानिब अपनी गाड़ी मोड़ रहा है और उसी दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली एक तेज़ रफ्तार कार ने इसको टक्कर दे दी। महलूक की शनाख्त इलाहीबाग के फारूक अहमद वानी के बतौर हुई है, जबकि फारूक की अहलिया शदीद जख्मी हैं। जिला किश्तवाड़ में आज आवारा कुत्तों ने खवातीन पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। इन जख्मी खवातीन को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। हमदान आबाद कॉलोनी में आज सुबह ये वाक़या पेश आया। लोगों का कहना है कि जिला किश्तवाड़ में आवारा कुत्तों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि फौरी तौर पर आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। आज जुमला 5 अफराद पर कुत्तों ने हमला किया, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हुए और 3 को हल्के जख्म आए। कुपवाड़ा के बड़ीपुरा हंदवाड़ा में तेज़ बारिशों के नतीजे में स्कूली इमारत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा, जिसके बाद आज स्कूल में दर्स व तदरीस का काम मुतासर हुआ। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल बड़ीपुरा हंदवाड़ा के नज़दीक बादल फटने के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी, जिसके नतीजे में स्कूल के कमरों में काफ़ी पानी दाखिल हुआ और स्कूल की दीवार भी गिर गई और इस दीवार को काफ़ी नुकसान पहुँचा। स्कूल के 3 कमरे ख़राब हो गए हैं। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीज़न के सखी मैदान में 3 रोज़ा बाबा सरोवर मेला ख़त्म हो गया है। हज़ारों क़िद्दतमंदों ने मेले में शिरकत की और बाबा सखी के आस्थाने पर हाज़िरी दी। यहाँ एक बड़े दंगल का भी अहतमाम किया गया था। मेले के दौरान बहुत सी कल्चरल सरगर्मियाँ देखने को मिली। यहाँ दरकार सहूलतें दस्तियाब कराने की मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मांग की। थोड़ी दिक्कत आ रही है स्टेडियम वगैरह की, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराने लोगों का रिवाज है, वही हम निभा रहे हैं। पत्थर उठाया जाता है, कुश्ती लड़ी जाती है, बस यही है, पहले बुजुर्गों के टाइम से यही चल रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कभी नज़र नहीं आता कि हमारे बच्चे आगे जाने के लिए इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, कल हमारे बच्चे कोई स्पोर्ट्स के लिए, जैसे आजकल वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है बाहर, आउट ऑफ स्टेट देखो, जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। और सबसे लिहाजा ये अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा जिम होगी, यहाँ पे कुछ स्टेडियम होगा और कल यहाँ से हमारे बच्चे निकल के आगे जाएंगे और स्टेट लेवल पे खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, तो कल इनको मौका मिले। 10वीं जमात में हीरानगर से बकरवाल तबके की सुमारा शकील ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। अपनी पार्टी के नायब सदर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने सुमारा के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। चौधरी जुल्फ़िकार अली ने हुकूमत से सुमारा का तालीमी खर्च बर्दाश्त करने की अपील की। जिला इंतजामिया राजौरी ने आज स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 30 स्कूलों में इनामात तकसीम किए। अवार्ड डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंदल ने तकसीम किए। इन स्कूलों ने अपने कैंप्स में सफाई का ख्याल रखा, जिसकी बदौलत उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। डीसी राजौरी ने अवार्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की। पुलवामा में बीजेपी कारकुनों का एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत पार्टी के जिला सदर सज्जाद रैना ने की, जिसमें बीजेपी के पंचायती मेंबरान ने भी शिरकत की।